Someone said, don't let the noise of this world to keep you from hearing the voice of God. और किसी ने कहा होने मत देना कि दुनिया में जो शोर शराबा है, जो आवाजें हैं, वो आपको रोक दे परमेश्वर के आवाज को सुनने से। I agree with this statement 100%. मैं 100% इस वाक्य से सहमत हूँ। How often it has happened to you कितनों बार ऐसा हुआ है that you felt the urge to do something, कि अंदर से लगता है कि कुछ करना है, but the noise in your mind and your thoughts stopped you from doing that. लेकिन आपके मन में जो आवाज आई, आपके मन के विचार ने आपको रोक दिया वो करने से। Whenever we allow these nudgings, intuitive nudgings, to be overshadowed by our thinking, और जब कभी भी जो अंदर से हमको महसूस होता है उसको हम अपने विचार के वजह से जो है रोक देते हैं, we miss out the opportunity to tap into the spiritual, तो हम मौके को गवा देते हैं अलौकिक में अपने आप को लगाने का, into that supernatural. वो अलौकिक में अपने आप को लगाने का मौका जो है हम गवा देते हैं। When we do that, जब हम ऐसा करते we हैं miss out a lot in life. तो जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी I बहन, want us to understand one basic principle. आप जो है एक मूल सिद्धांत को समझ लीजिएगा। A man, a human being, is made of three things. एक मनुष्य जो है 3 भाग में बना हुआ है। Number one, body, एक तो उसका शरीर है, soul, फिर उसका प्राण है, and spirit. फिर उसकी आत्मा है। Body is your physical existence. शरीर जो आप शारीरिक है, जो बाहर दिखता है। Soul is the emotional and mental existence. प्राण जो है आपका भावनात्मक या मानसिक आप हो, And the spirit is your spiritual existence. और आत्मा जो है आपका आत्मिक जो अस्तित्व है। God often uses the spirit, your spiritual existence, to speak to you. और हमेशा परमेश्वर जो है आपकी आत्मा को लेकर आपसे बात करते हैं। When we let that intuition go away, और जब हम वो अंदरूनी जो हमको अंदर से लगता है उसको जब हम मानते नहीं हैं, when we let that, we rather suppress that inner voice, जब हम अंदरूनी आवाज को दबा देते हैं, we are letting that supernatural thing go out of our hands. तो क्या हो जाता है, वो अलौकिक हमारे हाथों से निकल जाता है। I want us to open our Bibles to Isaiah 30 verse 21. आइए पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, यशायाह की किताब 30वां अध्याय और 21वां वाक्य। Look at how beautifully it says here. यहाँ पे देखिए कितने सुंदर रीति से लिखा हुआ It है। says, your ears shall hear the word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. और जब कभी तुम दाहिने व बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। The Spirit of God is speaking to you, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, but somewhere or the other the noise that is in your mind is making that spiritual intuition to be overshadowed. लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि आपके मन में आवाज है, उस वजह से जो पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं वो बात आप सुनते नहीं हैं। Apostle John puts it even better. प्रेरित यूहन्ना और बेहतर रीति से I कहते want us हैं। to open our Bibles to 1 John chapter 2 verse 20. यूहन्ना की पहली पत्री में खोलेंगे 2वां अध्याय और 20वां वाक्य। I'm going to read it for you in the NKJV version. It says, you have an anointing from the Holy One and you know all things. लिखा हुआ है, और तुम्हारे तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। When you accepted Jesus Christ of Nazareth as Lord and Savior, जब आपने नजरती यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता होने के नाते मान लिया, the dead spirit in you आप में जो मृतक आत्मा थी became alive. वो जिंदा हो गई, And it is that spirit of you is what the Holy Spirit speaks to. और वो आपके आत्मा से पवित्र आत्मा बात करते हैं। It is to your spirit that the Lord communicates to. और देखिए आपकी आत्मा से परमेश्वर वार्तालाप करते It हैं, is there that you hear what direction to take, और वहीं पे आप सुन लेते हैं कि कौन सी दिशा आपने लेनी है, what to do, what not to do, क्या करना क्या नहीं करना, which decision to take. क्या निर्णय लेना। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी when बहनों, we let that inner voice go, देखिए जब हम उस अंदरूनी आवाज को सुनते नहीं है, अनसुना करते हैं, we are losing a great deal of things in our तो life. हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को हम चूक देते हैं। Now there's somebody who said another thing. और किसी ने कुछ और कहा। Most often it happens with us. आमतौर से हमारे साथ ऐसा
ऐसा होता है too much of analysis. और बहुत ज्यादा यदि हम तर्क को लगाते हैं, यदि हम खोजबीन करते हैं, Anytime that we analyze too much, और जब कभी भी हम ज्यादा खोजबीन करने that लगते हैं, analyzing will make us to paralyze. उसकी वजह से हम मानो पैरालाइज हो जाते हैं या लकवा हमको लग जाता है। We put a limitation on ourselves. हम फिर अपने आप पर जाकर जो है एक बांध को लगा लेते हैं। Oh, this cannot be. ये हो ही नहीं सकता। Hallelujah. Whenever we say that this cannot be, जब कभी भी हम ये ऐसा कहते हैं कि यह हो ही नहीं सकता, that you are putting a limitation on yourself. तो आप जो है अपने आप को सीमित कर रहे हैं। Imagine Jehoshaphat, इसकी कल्पना करें, यहोशफात, who had a mighty army in front of him. उसके सामने बहुत ही बड़ी सेना थी। In front of him, he did not have even enough soldiers to put fight against. और उनकी तुलना में उसके पास में सैनिक भी नहीं थे उनके साथ लड़ने के लिए। But the Lord spoke forth, लेकिन परमेश्वर ने यहोशफात से and बात he की said, "Ki, go, and I'm going to give you the victory." और कहा यहोशफात से कि तू जा और मैं तुझे जय प्रदान करूंगा। And Jehoshaphat went. और यहोशफात गया। Jehoshaphat had to do is nothing, but all he had to do was nothing else but just stand to see how the Lord defeated the enemy. बस यहोशफात को ये करना था कि खड़े होकर देखना था कि यहोवा परमेश्वर कैसे ये शत्रु को परास्त करते हैं। It happened with Elijah. एलिया के साथ भी ऐसा It हुआ। happened with Elisha. एलीशा के My साथ भी brothers ऐसा and हुआ। my sisters, मेरे भाइयों मेरी you know बहनों, all the instances that I'm talking about. ये सारे संदर्भों को आप अच्छे से जानते हैं। When the servant of Elisha could not see what's happening, एलीशा का सेवक जब देख नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, all he could see was the enemy standing in front of वो him. सिर्फ ये देख रहा था कि शत्रु उसके सामने खड़ा है, He thought that they are done with. और उसको ऐसे लगा कि अब ये मर गए हैं। You know, when Elisha prayed and the Lord opened his और eyes, जब एलीशा ने सेवक के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने सेवक की आंखों को खोल दिया, he could see a huge resource waiting for him. तब वो देख पाया कि एक बड़ी भव्य सेना खड़ी है, Was at his command. वो उसके आज्ञा के लिए रुके हुए थे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, God want to do that supernatural in your life. परमेश्वर वो अलौकिक को आपके जीवन में करना चाहते हैं। Somewhere or the other, that it is you, the noise in your head, that is stopping you to experience that supernatural. कहीं ना कहीं आप और जो आवाजें आपके मन में उठ रहे हैं, उसकी वजह से आप वो अलौकिक का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। God wants to direct you. God wants to hold your hand and lead you into victory. Somewhere the noise in your head that is stopping you from getting there. परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको जय में ले चलना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में जो आवाजें उठ रही हैं उसकी वजह से आप वहां पे पहुंच नहीं पा It रहे is हैं। putting you in a limitation. उसकी वजह से आप सीमित हो रहे हैं, You're thinking too much. आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। If you're a spiritual person, अगर आप आत्मिक जन हैं, don't depend upon your thinking, your ability in your head. आपके विचार करने की क्षमता पर निर्भर मत होइएगा। At the same time, I'm not saying that don't act like dumb. उसी साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मूर्ख की तरह बर्ताव मत Don't be a कीजिएगा। mindless person also. आप अपना मन बिना मन लगाए कुछ भी मत करिएगा, But be sensitive to your spirit. लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके आत्मा में है उसके प्रति संवेदनशील रहिएगा। You know, he is trying to convey something to you. वो पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। Be sensitive to hear him. आप उनको सुनने के लिए आप अपने तत्पर रहिएगा। As Isaiah puts it very beautifully, जैसे यशायाह में बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ he है, says, "This is the way, walk in it." That's how the Lord will direct you. और परमेश्वर ऐसा मार्गदर्शन करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि यही मार्ग है, सही मार्ग है, इस पर चल। He will tell you go to the right, he will tell you go to the left. और प्रभु आपसे कहेंगे कि दाहिने मुड़ या बाएं मुड़। All you need to do is nothing but just do it. आपको सिर्फ ये करना है कि आपने उनको मानना है, उनके बातों को मानना When है। you do that, जब हम ऐसा करते हैं you will experience supernatural working in your life. तो आप अलौकिक का कार्य अपने जीवन में अनुभव I करोगे। want us to go with these thoughts into your day, और आप अपने दिन में इन विचारों को लेकर जाइएगा, being sensitive to the Spirit of God inside you. और आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उनके प्रति संवेदनशील, You will surely experience success in everything that you lay your hands on. और निश्चय ही जिन बातों पर आप अपना हाथ रखते हैं वहां पे सफलता आपका भाग होगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You have an रखे, awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।